ہیں آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں زیر زمین صاف پانی کو کیسے بچایا جائے۔ شہر اولیہ میں سروس اسٹیشن پر ری سائیکلنگ پلانٹس لگانے کی مہم فلاپ ہو گئی۔ ملتان واسا نے اسٹیشنز مالکان کو پلانٹ لگانے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دی، جبکہ خلاف ورزی پر سروس اسٹیشن کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انتظامیہ نے اس سے قبل 15 فروری کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ آپ کو بتا رہے ہیں زیر زمین صاف پانی کو کیسے بچایا جائے۔ شہر اولیہ میں سروس اسٹیشنز پر ری سائیکلنگ پلانٹس لگانے کی مہم فلاپ ہو گئی۔ ملتان میں واسطہ کی جانب سے صاف پانی ضائع کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر میں کئی سروس اسٹیشنز کو جرمانے اور نوٹسز جاری کیے گئے۔ سروس اسٹیشن ایسوسی ایشن کی جانب سے ایم ڈی واسطہ سے مطالبہ کیا گیا کہ ری سائیکلنگ پلانٹ فنکشنل کرنے کے لیے 1 ہفتہ کی مہلت دی جائے۔ ایم ڈی واسطہ نے 1 ہفتہ بعد کارروائی شروع کرنے کے احکامات دے دیے۔ ہم نے 411 سروس اسٹیشنز کو نوٹسز ایشو کیے تھے، پھر یہ سارے لوگ ہمارے پاس اکٹھے ہو کے آ گئے کہ جی ہمیں ٹائم دیں ری سائیکلنگ پلانٹ لگانے کا۔ اس سے یہ ہے کہ ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ پانی بچے گا، پانی کی بچت ہوگی، اسی کو یہ ری سائیکل کر کے ری یوز کر سکیں گے۔ ایم ڈی واسطہ ناصر اقبال نے کہا کہ ری سائیکلنگ پلانٹ نہ لگانے والے سروس اسٹیشن کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سروس اسٹیشن مالکان نے 1 ہفتے میں ری سائیکلنگ پلانٹ لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ہم ان کو ٹچ کریں گے، سب کو ہم تمام شہریوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ صاف پانی جو ہے وہ ضائع نہ کریں یا بچائیں اپنے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے۔ ایم ڈی واسطہ ناصر اقبال کا کہنا تھا کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے شہریوں کو پیغام دیا کہ گھروں میں بھی پانی ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ ملتان ترقیاتی ادارہ کی جانب سے 20 سالہ ماسٹر پلان میں نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ماسٹر پلان کے حوالے سے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ اسی پر رپورٹ کریں گے بلال نیازی۔ ترقیاتی ادارہ نے 20 سالہ ماسٹر پلان 2008 سے 2028 تک میں نظر ثانی کا فیصلہ کر لیا۔ ماسٹر پلان کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی میں ایم پی اے سبین گل، ایم پی اے سلیم اختر لابر، وائس چیئرمین ایم ڈی اے فاروق نسیم ایران، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ، ڈائریکٹر اربن پلاننگ، میٹرو پولیٹیکل افیسر اور ڈیپٹی تحصیل افیسر شامل ہیں۔ ہم نے عوام سے تجاویز مانگی ہیں۔ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ ہمیں بتائے۔ ہم نے لوگوں کو بینیفٹس دینے ہیں، لوگوں کو سہولیات دینا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے۔ چیئرمین ایم ڈی اے رانا عبدالجبار کا کہنا ہے کہ شہر کی اہم شاہراہوں کے حوالے سے قواعد کی تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایم ڈی اے نے شہریوں سے سڑکوں کے حوالے سے تجاویز بھی مانگ لی ہیں۔ ملتان کی اہم شاہراہوں نادرن بائی پاس روڈ، صدرن بائی پاس روڈ، خانیوار روڈ، مظفر گڑھ بائی پاس، ملتان پبلک سکول روڈ، ملتان کینال روڈ اور دیگر شاہراہیں شامل ہیں۔ نادرن بائی پاس ہے یا صدرن بائی پاس ہے، پاسز جو ہیں ان پہ جو پہلے ہمارا قانون ہے وہ ہے کہ 80 فٹ جو ہے وہ سیٹ بیک چھوڑ کے پھر جو ہے ڈیولپمنٹ اپنی کریں۔ اب جس کا پلاٹ ہی 50 فٹ ہے وہ کہاں سے چھوڑے گا؟ چیئرمین ایم ڈی اے رانا عبدالجبار کا کہنا تھا کہ سخت قوانین کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا تھا، اب اس میں ترمیم کی جائے گی۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے، 13 سال سے التوا کا شکار عجائب گھر منصوبے پر کام شروع ہو گیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف طیب سیف۔ کے شہریوں کے لیے بڑی خبر، عجائب گھر کے لیے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ 2007 سے التوا کا شکار منصوبے کا کام پھر سے شروع کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر میوزیم کا کہنا تھا کہ نوابین کے زیر استعمال مزید نوادرات میوزیم کی زینت بنیں گے۔ میوزیم کا ٹوٹل تخمینہ 43 ملین ہے، اب تک 20 ملین مل چکے ہیں۔ فرنٹ ایلیویشن ہے میوزیم کا وہ، اور ایک ہال جس میں تقریباً 350 سیٹس کا جو ہال ہے وہ ہمارا ابھی زیر تعمیر ہے۔ اس میں ہمیں 43 ملین ٹوٹل ایلوکیٹ ہوئے ہیں، جس میں سے ہمیں 20 ملین جو ہے وہ مل چکے ہیں۔ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ میوزیم میں 350 فٹ کا مرکزی ہال اور آرٹ گیلری بنے گی، جسے مکمل کر کے رواں سال دسمبر تک عوام کے لیے کھول دیں گے۔ جون میں تو اس کا جو یہ ابھی ہمیں جو ایلوکیشن ہوئی ہے 23 ملین کی، یہ تو جون میں ہمارے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو جو کمنگ جولائی ہے اس میں ہمیں پھر جو باقی ہمارے 23 ملین جو ہمارے رہ جائیں گے وہ ہمیں جب مل جائیں گے تو ہوپ فلی یہ دسمبر جو یہ اس سال کا دسمبر ہے اس تک انشاءاللہ ہم اس کو کھول دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس نواب آف بہاولپور کی بہت سی چیزیں تاحال موجود ہیں جن کی نمائش نہیں کی جا سکی، جو نیا ہال بننے کے بعد ممکن ہو سکے گی۔ 2021 کے اختتام کے ساتھ ہی
भावलपुर के म्यूजियम का काम भी खत्म हो जाएगा, जिसके बाद भावलपुर के शहरियों को भावलपुर की सकाफत जानने का एक और मौका मिलेगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, भावलपुर। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत 160 रुपए किलो तक पहुंच गई। रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 160 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। माह मार्च 2021 के लिए एलपीजी की कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पहले भी गैस महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, हर चीज महंगी करी जा रहे हैं। हम तो इसलिए इमरान खान को वोट दिया था कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा माहौल लेके आएंगे। उन्होंने तो आते ही सारे काम बढ़ा दिए। हम तो खुद परेशान हैं। हमने वोट दिया तो है, लेकिन हमारे वोट की कामयाबी अभी तक नहीं हो रही। घरेलू सिलेंडर की कीमत 22 रुपए बढ़ गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 84 रुपए का इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर 1885 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 7252 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। महंगाई बहुत है, बहुत परेशान है। बच्चों की रोजी नहीं कर सकते हम। गैस डलवाएं यार, बच्चों की रोजी घर लेके जाए खर्चा। शहरियों का कहना है कि हर चीज महंगी हो रही है। पहले पेट्रोल महंगा किया गया, अब एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में चिकन की कीमतों में इजाफा जारी है। सरकारी रेट 360 रुपए होने के बावजूद 380 रुपए किलो गोश्त फरोख्त होने लगा है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे महमूद जहीर। चिकन के गोश्त के हवाले से बहावलपुर में चिकन की कीमतों में इजाफा जारी है, जहां दुकानदारों की तरफ से सरकारी रेट की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी हैं। सरकारी रेट 360 रुपए होने के बावजूद 380 रुपए किलो गोश्त फरोख्त होने लगा। रेट लिस्ट तो किसी दुकान पे नहीं होती, लिखी भी होती है रेट लिस्ट, तो उस रेट पे कोई भी नहीं देता। चिकन के गोश्त के हवाले से खुद साख्ता रेट्स की शिकायत भी जुबान ज़दे आम है। दुकानों पर कहीं रेट लिस्ट आवेजा नहीं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रेट लिस्टों में हम बहुत ज़्यादा हमारी सख्ती है। इसमें बहावलपुर में हमने 100% इंश्योर करवाया हुआ है। जहाँ पे रेट लिस्ट नहीं होती वहाँ पे फौरी तौर पे उसके खिलाफ जो है हमारा प्राइस मजिस्ट्रेट जो है उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो अभी क्योंकि सीज़न शादियों का भी चल रहा है और इस तरह इसकी खपत भी ज़्यादा है चिकन की, लेकिन फिर भी डेली बेसिस पे चिकन के जो रेट हैं वो डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जाता है। वो उसकी सप्लाई और डिमांड को नज़र में रखते हुए उसके मुताबिक रेट जो है वो फिक्स किए जाते हैं। शहरियों ने प्राइस मजिस्ट्रेट्स को रोजाना की बुनियाद पर मार्केट चेक न किए जाने के भी शिकवे किए। जिला इंतजामिया ने रेट लिस्ट आवेजा होने और चिकन गोश्त रेट्स कंट्रोल में रहने का भी दावा किया। चिकन मार्केट की किसी भी दुकान पर रेट लिस्ट का आवेजा न होना जिला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। महकमा ज़राअत बलोचिस्तान और राइस एजी कंपनी के ज़ेर एहतमाम बलोचिस्तान के काश्तकारों का दौरा पंजाब बराए टनल फार्मिंग इख्तिताम पजीर हो गया। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। में टनल फार्मिंग प्रमोशन प्रोग्राम के सिलसिले में महकमा ज़राअत बलोचिस्तान और राइस एजी कंपनी के ज़ेर एहतमाम बलोचिस्तान से आने वाले काश्तकारों का दौरा पंजाब इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब मुल्तान की निजी होटल में मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर ज़राअत तोसीक कल्लात डिवीजन मोहम्मद शाहिद का कहना था कि राइस एजी कंपनी के ताउन से काश्तकारों को टनल फार्मिंग के बारे में आगाही मिली है। हमारे जिम्मेदार बलोचिस्तान से यहाँ पर आए तो बिल्कुल इनको नहीं मालूम था कि टनल फार्मिंग क्या होती है। यहाँ जो राइस एजी ने हमारे यहाँ पर सारी मैनेजमेंट की और हमें मेलसी लेकर गए। वहाँ पर फार्मिंग की जो फार्मर्स थे, टनल फार्मर्स, उन्होंने मियाँ मेहताब साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को ब्रीफ किया। चेयरमैन राइस एजी कंपनी गुलाम फरीद का कहना था कि पंजाब के काश्तकार अपने बलोचिस्तान के काश्तकार भाइयों के साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। जब पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट हो रही है वो हमारे बलोचिस्तान तक नहीं पहुंच रही, तो उस हवाले से हमारा ये इनिशिएटिव था कि हमारी जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो हमारे ज़मीन तक पहुँचे, ताकि हमारा ज़मींदार उन चीज़ों को अडॉप्ट करके अपनी फसलों से बेहतरीन फायदा उठा सके। बलोचिस्तान से आने वाले काश्तकारों का कहना था कि दौरे से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। सूबे में वापस जाकर टनल फार्मिंग को फरोग देंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, रहीमिया खान में आरटीओ बहावलपुर जुबैर अहमद रेशक की सरबराही में रिव्यू बोर्ड ने पुलिस लाइन में पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती के उम्मीदवारों के एतराजात सुने और उनको दूर करने के लिए कार्रवाई की। इसी हवाले से आसिम सदीक हमें रिपोर्ट करेंगे।
अफरादी कुव्वत को पूरा करने के लिए भर्ती का सिलसिला जारी है। जिले पुलिस, हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में जवानों की भर्ती में जिस्मानी पैमाइश और दौड़ के मरहले तय हो चुके हैं। मेरिट को मुमकिन बनाने के लिए जिस्मानी पैमाइश या दौड़ में एतराजात सुनने के लिए आरपीओ भावलपुर जुबैर अहमद रिशक की सरबराही में रिव्यू बोर्ड ने पुलिस लाइन में उम्मीदवारों की शिकायत सुनी। रिव्यू बोर्ड में एसपी इन्वेस्टिगेशन भावलपुर रब नवाज, एसपी हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मोहम्मद शरीफ भी शामिल थे। आरपीओ भावलपुर जुबैर अहमद रिशक का रोहित से बात करते हुए कहना था कि पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए मेरिट पर खुसूसी तवज्जो है। उम्मीदवारों की शिकायत सुनने के लिए रिव्यू बोर्ड काम कर रहा है। ये हमारी जो पॉलिसी है उसमें बड़ा क्लियर है कि पहले एक बोर्ड आता है, इंडिपेंडेंटली कोई इस तरीके से भर्ती नहीं होती। बोर्ड आता है, वो इन लोगों को रिक्रूट करने के जो प्रोसेस, जो मरहल हैं, फिजिकल और एंड्योरेंस टेस्ट, उसके बाद आज का दिन ये रिव्यू का होता है ताकि उन्हें एक और मौका दिया जाए। अगर किसी को कोई एतराज है तो एक नया बोर्ड आए और उनको चेक करे। इससे कबल आरपीओ भावलपुर पुलिस लाइन्स पहुंचे तो इनको पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आरपीओ ने डीपीओ असद सफाज के हमरा यादगार शोहदार पर हाजिरी दी। पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती के उम्मीदवार अपनी शिकायत लेकर बोर्ड के सामने पेश हुए। इतराजात पर जिस्मानी पैमाइश समेत मुख्तलिफ मराहिल की दोबारा जांच की गई। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको अहम खबर देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया नईम सादिक का तबादला कर दिया गया। नईम सादिक को लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन सियालकोट उस्मान हसन एसी अहमदपुर तैनात कर दिए गए। उमर सरवी को एसी चिश्तियां से ओएसडी बना दिया गया, जबकि मोहम्मद अकमल को असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तियां लगा दिया गया। मुजम्मिल इलियास को एसी मिंचनाबाद लगा दिया गया है। आपको अपडेट करें, नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। तालीमी साल 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया। तालीमी साल कोरोना के बायस 8 माह का होगा। फेडरल एंड इंटर प्रोफेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में यह फैसला किया गया। सूबाई वुज़रा कॉन्फ्रेंस 26 फरवरी को मुनक्किद हुई थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के खिलाफ असातिज़ा और तलबा का एहतजाज 17वें रोज भी जारी रहा। तलबा और असातिज़ा ने सड़क पर बैठकर 6 नंबर वार्ड मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एमरसन कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर असातिज़ा और तलबा का एहतजाज 17वें रोज भी जारी रहा। पंजाब भर से प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स एसोसिएशन तंजीम के मेंबरान भी एहतजाज में शिरकत करने के लिए आए। असातिज़ा और तालिब इल्म बार बार कॉलेज की कीमत पर यूनिवर्सिटी नामंजूर के नारे लगाते रहे। जिनका तारीख में एक नाम है, किसी को 100 साल, किसी 125 साल बने हो गए हैं और उनको ये यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं जहां एक बच्चे की 2000 फीस है और जब ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो इसकी फीस हो जाएगी 52,000, 55,000, 60,000 और ये आवाम को भी गुमराह कर रहे हैं। प्रोफेसर और लेक्चरर एसोसिएशन के मेंबरान का कहना था कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो पूरे मुल्तान के कॉलेज सड़कों पर निकलेंगे। हुकूमत ने तालीम को फरोग देने की बात की थी, लेकिन ये तो बरक्स हो रहा है। वोट लेने के लिए ये आ जाते हैं, हम ये करेंगे, हम आपकी तालीम सस्ती करेंगे, हम सड़कें बनाएंगे, हम आपको सेहत सहूलियात देंगे। भाई कहाँ है वो सेहत सहूलियात, कहाँ है हमारी तालीम? क्यों 50,000 की जा रही है हमारी तालीम? तलबा ने कहा कि वो ज्यादा फीसें नहीं दे सकते। अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो यूं ही सड़कों पर बैठे रहेंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। धागे की कीमतों में इजाफा नामंजूर। मुल्तान में पावरलूम्स की सनत से वाबस्ता अफराद सड़कों पर निकल आए। पावरलूम्स मालिकान ने 14 नंबर चुंगी पर धागे की कीमतों के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाया। रिपोर्ट करेंगे माजिद क्लास्ट्रा। धागे की कीमतों में इजाफे पर पावर लूम्स की सनत से वाबस्ता कारोबारी लोग सड़कों पर निकल आए। पावर लूम मालकान ने 14 नंबर चुंगी पर एहतजाजी कैंप लगाया और एहतजाजी मुजाहरे के दौरान रोड को ब्लॉक कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। सदर आल पाकिस्तान पावर लूम्स एसोसिएशन खालिद कंदील ने कहा कि धागे की कीमत में इजाफे पर पूरी पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाह हो गई है। चंद दिन के अंदर फी बैग कीमत में 20,000 रुपए का इजाफा हो चुका है। सनते बहरान का शिकार हो रही है। धागे की कीमतों की वजह से इस वक्त हमारी पावर लूम इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में तबाह हो चुकी है और ये चंद दिनों के अंदर अंदर ये 15 से 20,000 पर बैग जो 39 केजी का होता है वो बढ़ चुका है। हुकूमत इसको बिल्कुल इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही।
एहतजाजी मुजाहरे के बायस ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। पावर लूम्स मालकान ने मुतालबा किया कि कपड़े की एक्सपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। धागे की कीमतों में इजाफे पर सनतें बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हमारी जो सनत है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। हमारे लाखों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं, उनके घरों के अंदर चूल्हा ठंडा हो चुका है। हम मजदूरों की बात करते हैं, हम पावर लूम एसोसिएशन के साथ तल्लुक रखने तमाम लोगों की नुमाइंदी तंजीम है। पावर लूम एसोसिएशन के मालकान ने धमकी दी कि अगर धागे की कीमतों में कमी ना की गई तो एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माजिद क्लासरा, रोही, मुल्तान। उधर मियांवाली में फॉरेस्ट एसोसिएशन का नाजिम जंगलात सरगोदा सर्कल के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि नाजिम जंगलात का फौरी तौर पर तबादला किया जाए। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाद। मियांवाली फॉरेस्ट एसोसिएशन ने तीसरे रोज भी नाजिम जंगलात सरगोदा सर्कल मलिक इमदाद हुसैन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि लकड़ी चोरों के खिलाफ कार्रवाई करें तो नाजिम जंगलात आड़े आ जाते हैं, क्योंकि नाजिम जंगलात की चोरों के साथ मिली भगत है। इसकी वजह से नाजिम जंगलात बिला जवाज वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। प्रोटेक्शन के हवाले से मसाइल पूरे पंजाब में है, तो हमने ये प्रोटेक्शन के हवाले से काफी कार्रवाई की है। मीडिया को हम दिखा सकते हैं यहाँ पर कितने लोडर, चिंची, डाला वगैरह पकड़े हुए हैं। तो इस वजह से जब कंडक्टर साहब को ये चीज पसंद नहीं आई कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की। वर्कर्स का कहना था कि नाजिम जंगलात की ज्यादती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हर सतह पर एहतजाज करेंगे और उस वक्त तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक नाजिम जंगलात सरगोदा सर्कल का तबादला नहीं किया जाता। हमारा मुतालबा तो ये है कि जब तक नाजिम जंगलात मलिक इमदाद को जहां से तबादला उसका नहीं होता, हम उस वक्त तक अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। दूसरी जानब नाजिम जंगलात सरगोदा सर्कल मलिक इमदाद हुसैन का कहना है कि ड्यूटी में कोताही पर एक्शन लिया है, इसकी पादाश में वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। पाकिस्तान में मवेशी चोरी की वारदातें रोकने के लिए पुलिस हरकत में आ गई। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करके 2 गैंग गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में मवेशी चोरी की वारदातें रोकने के लिए पुलिस सरगर्म हो गई। थाना सदर ने कार्रवाई करके मवेशी चोरी में मुलव्विस 2 गैंग पकड़ लिए। मुराजी गैंग और मुन्ना गैंग के मुलजमान से 8 लाख रुपए और 2 जानवर बरामद किए गए। एसपी गुलगश्त डॉक्टर रजा तनवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलजमान की गिरफ्तारी से 9 मुकदमात भी ट्रेस हुए। मुलजमान रात की तारीकी में घरों में बंधे जानवर चोरी करके खानेवाल और कबीरवाला के इलाके में फरार हो जाते। गैंग है जो कि उन्होंने पकड़ा है, जो कि मवेशी चोर गैंग था, उसके टोटल 4 मुलजिमान जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे एक गाय और एक बछड़ा मौके से बरामद हुआ और ये काफ़ी मेहनत करने के बाद अमीन और उसकी टीम ने जो है ये गैंग पकड़ा है। टोटल 2 गैंग हमने इसमें निकाले हैं। एक गैंग का जो नाम है उसका नाम है मुलाजिम हुसैन गैंग और दूसरा है मुनव्वर के नाम, मुनव्वर है उसका मेन मुलजिम है, जो कि मुन्ना गैंग के नाम से मशहूर है। एसपी गुलगश्त डॉक्टर रजा तनवीर का कहना है कि मवेशी चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए मनसूबाबंदी की गई। पुलिस नाकों पर मवेशियों की चेकिंग का निजाम बेहतर किया गया ताकि शहरियों को कीमती जानवरों से महरूम करने वाले मुलजमान गिरफ्तार किए जा सके। एक ऑर्डर है कि मवेशी चोरी एक बहुत ज़्यादा अहम एक चीज़ है जो कि हमने कंट्रोल करनी है, क्योंकि उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी जो अमीर लोग होते हैं जो अच्छे घरों में लोग होते हैं, उनकी जो फिर भी कोई ना कोई बैक हैंड पे कोई ना कोई उनकी रिकवरी वगैरह या उनके पास कोई पैसे होते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके पास एक बकरी हो, एक गाय हो, एक बच्चा हो, वही उनकी कुल कायनात है। उसी से उन्होंने कमाना है, उसी से अपने बच्चों का पेट पालना है और वो उसकी पूरी दुनिया है। अगर कोई बंदा उसको छीन के ले जाए तो उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती है। मुलजमान से बरामद होने वाले 8 लाख रुपए भी मालकान के हवाले किए गए। ये 11वें माह में चोरी हुआ था। ये मैंने 4 लाख की परचेज की थी और ये गन पॉइंट पे चोरी हुआ था। 12 हमने मुकदमा दर्ज कराया। इन्होंने बहुत मेहनत की, पुलिस वालों ने खुशामद की बात नहीं है और इन्होंने न सिर्फ माल बरामद कराया बल्कि मुलजिम भी ओरिजिनल अरेस्ट किए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान थाना अल्पा और थाना सदर के देही इलाकों में मवेशी चोरी की 30 वारदातें की गई। गिरफ्तार मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी भी जल्द होगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर मजीद, रोही, मुल्तान। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में मुहाजिर परिंदों की वापसी का अमल शुरू हो गया। साइबेरिया से आने वाली मुर्गाबी की मुख्तलिफ अक़साम मुख्तलिफ अजला में अब घरों को लौटने लगी। जनूबी पंजाब में मुहाजिर परिंदों की वापसी शुरू हो गई।
मुल्तान समेत मुख्तलिफ अजला में साइबेरिया से आने वाली मुर्गाबी की मुख्तलिफ इकसाम अब घरों को लौट रही है। मौसमी सरमा में पिंटेल, गेटबॉल, पोर्चर्ड और मुर्गाबी की दीगर इकसाम आती हैं और मौसमी गर्मा के आगाज पर वापस लौटती हैं। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला, मतीतल और बंद बोसन के इलाकों में मुर्गाबी का शिकार खेला जाता है। 31 मार्च से मुर्गाबी के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। और अभी आपको बताएं, कपास के ऑफ सीजन में महकमा ज़राअत मुल्तान गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए सरगर्म है। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग चौधरी अरशफ का कहना है कि कपास की आइंदा फसल को गुलाबी सुंडी से बचाने के लिए किसान छड़ियों को मुनासिब तरीके से तल्फ करे। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। महकमा ज़राअत मुल्तान की जानिब से गुलाबी सुंडी के तदारुक के लिए कपास के ऑफ सीजन में इकदाम जारी हैं। कॉटन के ऑफ सीजन में आइंदा कपास की फसल को मुख्तलिफ बीमारी और हमलों से बचाव के मुताल्लिक इकदाम किए जाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कॉटन कैलेंडर के मुताबिक किसानों को गुलाबी सुंडी के हवाले से मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जा रही है। कपास की आइंदा फसल को गुलाबी सुंडी से बचाने के लिए किसान छड़ियों को मुनासिब तरीके से तल्फ करें। जो ऑफ सीजन मैनेजमेंट है, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ भी ये बनौला है और जहाँ इसके छुपने की जगह है उसको ख़त्म किया जाए। उसमें जिनक फैक्ट्रियाँ हैं, हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं भी उसका ढेर हो उसको तल्फ किया जाए। वो भट्ठों में देते हैं और फिर वहाँ भट्ठों में भी हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। डिप्टी डायरेक्टर का मजीद कहना था कि मार्च के महीने में छड़ियों के टींडों में गुलाबी सुंडी की अफजाइश का खतरा रहता है। कोशिश की जा रही है कपास की काश्त से कबल तमाम हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए जाएं। जिम्मेदारों को कहते हैं कि आप जो है इसके छड़ियों को झाड़ लें और उसमें जो टिंडे हैं, बचे खुचे टिंडे, वो लहदा करके उसको जब जला लें, जब भट्टे वालों को दे दें ताकि वो उसको जो उसके अंदर सुंडियां हैं वो सारी खत्म हो जाएं। जनूबी पंजाब में रवां साल अप्रैल के महीने में कपास की काश्त की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम मियां खान में किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर कहते हैं, पाकिस्तान में ज़राअत के शोबा पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। अली आसिम सदीक रिपोर्ट करेंगे। किसानों के मसाइल उजागर करने के लिए किसान कॉन्फ्रेंस मुनाकद की गई। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा कि पिछले कुछ सालों से हुकूमत की तरजीहात में ज़राअत नहीं, गंदम और दालें भी दरामद कर रहे हैं। 31 मार्च को किसान ट्रैक्टर तहरीक लाहौर इस्लामाबाद का रुख करेगी। मैं कई दहाइयों से देख रहा हूँ हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है। अगर हुकूमती तरजीहात में ज़राअत नहीं है तो हुकूमती तरजीहात में पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है। और किसी मुल्क ने भी जब तरक्की शुरू की है, पहले उसने ज़राअत की है, बाद में सनत की है, बाद में IT में आया। वो किसान रहनुमा सैयद महमूद बुखारी ने कहा कि तहरीक न चलाई तो हुकूमत भी इनका साथ नहीं देगी। ये खुशी की बात है कि किसानों को इस तरफ रागिब किया है और ये मीटिंग तो कुछ न कुछ जिद्दोजहद पिछले कुछ अरसे से किसान ने अपनी बात करना शुरू की है। हमारे रहीम मियां खान में खास तौर पे अपर पंजाब में कुछ तंजीमें कुछ एक्टिव थी, लेकिन ये साउथ पंजाब में बिल्कुल इस तरह से कोई एक्टिविटी बहुत कम हुआ करती। किसान रहनुमा चौधरी मोहम्मद यासी ने कहा कि किसानों का सबसे बड़ा मसला पानी की फराहमी है। पानी होगा तो फसलें होंगी। काश्तकार का वो पानी है। हमारा जिले का सबसे बड़ा मसला आवासीय लिंक का है, जिसमें हमने जद्दोजहद की। वो 104 नहरें थी, बंद कराई। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली महमूदुल हसन चीमा का कहना था कि किसानों का शऊर आना खुशी की बात है। किसानों के हकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हरफे आगाज जो है कि हम अपनी इस किसान काज को एक तहरीक की शक्ल देने में जब तक कामयाब नहीं होंगे तो ना हुकूमत हमें इज्जत देगी, ना हमें हमारी फसलों का रेट मिलेगा। किसान रहनुमा ने हुकूमत की ज़राअत पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। किसान रहनुमा का कहना था कि हुकूमत का वतीरा बन गया है, जब तक लोग सड़कों पर न आए तो ये खामोश तमाशाई बनी रहती है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम मियां खान। और अभी बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पैक ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, सेनेट इलेक्शन में साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए PDM रहनुमाओं ने दरबार हजरत मूसा पाक शहीद पर हाजिरी दी और खुसूसी दुआ की। अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे। सेनेट इलेक्शन का मैदान 3 मार्च को सजेगा। PDM रहनुमा अपने उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी की जीत के लिए पुरुमीद है। PDM रहनुमाओं ने दरबार हजरत मूसा पाक शहीद पर हाजिरी दी।
फूल चढ़ाए और खुसूसी दुआएं कराई गई। मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA शेख तारिक रशीद, पीपल्स पार्टी के साबिक MP डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा डॉक्टर अशरफ समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। शेख तारिक रशीद ने कहा कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के मजबूत उम्मीदवार हैं। हम इनकी बरक़ात और फयूज से अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100 नहीं 101% हमें कामिल यकीन है कि हमारे PDM के जो मुश्तरका जो कैंडिडेट हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। साबिक रुकन सूबाई असम्बली डॉक्टर जावेद सिद्दीकी का कहना था कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी सराइकी खित्ते की पहचान है और सब जीत के लिए पुरुमीद है। बतौर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने चूंकि तमाम जमातों के MNAs को बराबर की इज्जत दी थी और वो फंड्स भी सबको बराबर देते थे और एहतराम भी सबका बराबर करते थे, यही वजह है कि किसी भी जमात में वो लोग चले जाएं लेकिन उनके दिलों में जो यूसुफ रजा का प्यार है, बलूचिस्तान के MNA हों, सिंध के हों, इवन PTI के कुछ वज़रा क्यों ना हों और इलेक्टेड MNAs क्यों ना हों, जो एहतराम और इज्जत वो यूसुफ रजा गिलानी का दिल से करते हैं उतना वो इमरान खान कभी नहीं करते। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर अशरफ ने कहा कि क्लोज बेल्ट पेपर इंतखाबात अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ कि इसका फायदा यूसुफ गिलानी साहब को बहुत ज्यादा होगा क्योंकि जो मोहब्बतें और किरदार हैं वो अहमियत का हामिल है। गिलानी साहब ने जो मोहब्बतें सियासी बसीरत में लोगों के साथ पैदा की हैं उसका उन्हें आज खुफिया वोट में ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। दरबार पर सैयद सदरुद्दीन गिलानी, सैयद इर्तजा गिलानी, कसवर भट्टी समेत कसीर तादाद में रहनुमाओं ने शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन मुगीत शाह के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। हाईकोर्ट बार मुल्तान के सालाना इंतखाबात, नौमुंतखब ओहदेदारान ने ओहदा संभाल लिया। नौमुंतखब सदर हाईकोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी का कहना है कि साइलिन को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। माहिर इमरान की रिपोर्ट। हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात में जीतने वाले 9 मुंतखब ओहदेदारों ने ओहदा संभाल लिया। दोस्त और अहबाब की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। सदर हाईकोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी को दोस्तों की जानिब से फूल भी पेश किए गए। मेरी और मैं इन पे काम कर सकूं। 9 मुंतखब सदर हाईकोर्ट बार सैयद रियाजुल हसन गिलानी का कहना है कि वुकला रोही टीवी के शुक्रगुजार हैं, जो हमेशा वुकला के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे। हमारा जो मोटिव है और वो सिंपल है कि हमने रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है, हमने बार और बेंच के दरमियान कॉर्डियल रिलेशंस रखने हैं और हमने किसी किस्म की भी रिगिंग या किसी किस्म की भी माल प्रैक्टिस उसको रोकना है और हमने जो लिटिगेंट्स हैं उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना है। ये हमारा मिशन है। सीनियर वकील महमूद अशरफ खान का कहना था कि जल्द और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। जिन वकला ने वोट देकर एतमाद का इजहार किया उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। लिया में जश्न बहारा मेले का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर अरशाद अहमद ने जश्न बहारा मेले का इफ्तिताह किया और फूलों की नुमाइश का भी विजिट किया। रिपोर्ट करेंगे जाहिद सरफराज। बहार की आमद के साथ ही लिया में जश्न बहारा मेला का आगाज कर दिया गया। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में मुनक़िदा मेले का इफ्तिताह कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद ने किया। कमिश्नर ने जश्न बहारा के मौका पर लगाई गई फूलों की नुमाइश का भी विजिट किया और बेहतरीन इंतजामात पर इंतजामिया की काविशों को सराहा। मुख्तलिफ शहरों में भी जो है जश्न बहारा का इनेकाद किया जा रहा है और उसी सिलसिले में लिया में भी ये इनेकाद किया गया है और माशाल्लाह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने बड़े अच्छे जो है अपना स्टॉल्स हैं या और फूलों की नुमाइश लगाई है, तो इसको दिली खुशी हुई है और होपफुली जो लिये के अवाम है इसको एंजॉय भी करेंगे। और डिप्टी कमिश्नर असफर जिया ने कहा कि एक हफ्ते के लिए सजाए गए मेले में रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इसके साथ फूड स्टॉल्स है, फूड स्ट्रीट बनाई गई है, मीना बाजार का इंतजाम किया गया है। 5 तारीख को लोकल सिंगर्स हमारे शाम को यहाँ पर अपने फन का मुजाहरा करेंगे और 6 तारीख की शाम को सैटरडे को हफ्ते वाली रात को हमने मशहूर सिंगर मलको को बुलाया जो यहाँ पे म्यूजिकल नाइट करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनके मुकाबले हैं वो भी साथ साथ जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये जश्न बहारा इंशाअल्लाह तारीख में लिया की याद रखा जाएगा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब रफाकत गिलानी ने जश्न बहारा मेले को शहरियों के लिए बड़ी तफरीह का मौका करार दिया। बाकायदा इफ्तिताह हो गया और ये जश्न बहारा जो है इंशाअल्लाह ताला बाहर लेके आएगा हमारे नौजवानों को के लिए और हमारे यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है उनके लिए। जश्न बहारा के मौका पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों के साथ म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया जा रहा है। शहरियों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ कैंप और फूड स्ट्रीट भी मुनक्किद होंगी। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया।
और अभी आपको बताएं, मुल्तान जिम्नेजियम में विलायताबाद बैडमिंटन क्लब के मोहम्मद अली और कासिमपुर क्लब बैडमिंटन क्लब के मोहम्मद कासिम के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद। ये मनाजिर है मुल्तान जिम्नेजियम के, जहां विलायताबाद बैडमिंटन क्लब और कासिमपुर बैडमिंटन क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। विलायताबाद बैडमिंटन क्लब से मोहम्मद अली और कासिमपुर बैडमिंटन क्लब से मोहम्मद कासिम ने अपने फन के जौहर दिखाए। विलायताबाद बैडमिंटन क्लब के खिलाड़ी मोहम्मद अली ने 2 मैच तक मुश्त जीत कर मुकाबला अपने नाम कर लिया। बड़ा मुश्किल हुआ इसे जीतना, क्योंकि फिजिकली बहुत फिट है, हल्का फुल्का सा जिसम है, बड़ा बहुत ही तेज है ये तो, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने इज्जत दी। अभी मैं जो मैच जीता हूँ। बैडमिंटन हॉल में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने भी एंट्री डाली। इन्होंने जिम्नेजियम के मसाइल की हल की भी यकीन दहानी कराई और कहा कि खेल सेहत के फरोग के लिए जरूरी है। कोशिश है कि मुल्तान के ग्राउंड्स को आबाद करने के साथ साथ अस्पतालों को वैरान किया जाए। क्वार्टर में एक इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट भी करवाया स्क्वाश का, वो भी बहुत एक अच्छा एक्सपोजर था साउथ पंजाब के लिए। और अभी इंशाल्लाह हम हफ्ते 10 दिन तक साउथ पंजाब का बैडमिंटन का टूर्नामेंट यहाँ पे स्टार्ट करवा रहे हैं, जिससे और भी हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा। मैच के बाद शहरियों ने भी बैडमिंटन खेली। मारूफ कोच शर्जील ने इनकी कोचिंग की। कोच शर्जील ने कहा कि वो जनूबी पंजाब के शहरियों से मुतमईन है, मगर प्लेटफॉर्म न होने के बाइस मुश्किलात का सामना है। देखता हूँ मैं अपने बच्चों को बहुत टैलेंटेड पाता हूँ। जनूबी पंजाब में टैलेंट की मिकदार बहुत ज़्यादा है बैडमिंटन के लिहाज से, लेकिन सहूलियात का फुकदान होने की वजह से यहाँ पर उस तरह का टैलेंट उभर नहीं पाता और अच्छी तरक्की नहीं कर पाता। शाम ढलते ही बैडमिंटन हॉल में शहरी अपने दोस्तों के हमरा वक्त गुजारने के साथ साथ जिस्मानी फिटनेस का भी ख्याल रखते हैं। शाम ढलते ही शहर ओलिया के बासी अपने दोस्तों के हमरा बैडमिंटन खेलने के लिए जिम्नेजियम पहुंच जाते हैं, जहां पर मुख्तलिफ कोर्ट से ये बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेने के बाद प्लेटफॉर्म की तलाश में है, ताकि पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोही।